student, today I am going to discuss a very interesting chapter of your plus 2 second year English grammar. So let's start. And the topic name is interrogative. Before we discuss something about interrogative, you should know about sentence, kinds of a sentence, kinds of a simple sentence, etc. Without the knowledge of this sentence, kinds of sentence, etc., you can't understand interrogative clearly. So let us discuss about first sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense itself is called sentence. तो आम जाना सेंटेंस गोटे ग्रुप ऑफ वर्ड रही जोटा कि आमको कंप्लीट सेंस दौथुब ताकू आम सेंटेंस कहती. फॉर एग्जांपल, इज ए बॉय गुड राम. इज आर वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो सी सब कौन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अच्छा, बट इट कैन नॉट कॉल सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस टू अस. तो एबे यहाँ आमर कंप्लीट सेंस दौना, तो आम केबे भी ताकू सेंटेंस कहबा नहीं. बट हियर राम इज ए गुड बॉय, इट इज गिविंग a sense to us, so we called Ram is a good boy is a sentence. Are you all clear? I think you are clear. Then sentence, kinds of sentences divided into three types. One is simple sentence and another is compound sentence and third one is complex sentence. And here if we go to the definition of a simple sentence, then a sentence consisting of only one clause with one single subject and predicate we call simple sentence. And compound sentence, a compound sentence is one in which at least two independent clauses join together by a coordinate conjunction. And a complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. So first we have to know about the simple sentence. A simple sentence is one in which we find a subject, a single subject and a predicate जदि कहि परिबा, or one clause थिबो consisting of only one clause. तो ता माने गोटे clause थिबो, गोटे सब्जेक्ट थी, सिंगल सब्जेक्ट थी, गोटे प्रेडिकेट थी. फॉर एग्जांपल आम देदेबा राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. राम इज द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ पार्ट इज प्रेडिकेट. एंड राम तो किए ना हु इज ए गुड बॉय. जदि आम क्वेश्चन करवा ताहले सब्जेक्ट पाई जिबा हु इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. सो वी फाइंड द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमें पाइले राम एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट इज प्रेडिकेट पार्ट, दैट इज ए गुड बॉय, दैट इज प्रेडिकेट पार्ट. ना हियर वी फाइंड वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड इट्स गो विथ सिंपल सेंटेंस. यहाँ तो सिंपल सेंटेंस भीतर ही जाऊँगी. चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग क्रिकेट. चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग क्रिकेट. नाउ हु आर प्लेइंग क्रिकेट? Who are playing cricket? The children are playing cricket. तो आम कहीदेबा children's that is a subject and are playing cricket is a predicate part. Rest of part is a predicate part. Then he is an honest man. He is an honest man. Who is an honest man? He that means a pronoun हेले मध्य यह आमर सब्जेक्ट स्थान नौची ना. he is a subject and the rest of part is predicate part. Are you all understand? Then compound sentence. A compound sentence is one in which at least two independent clauses join together by a coordinate conjunction. ना compound sentence ता सेटा at least हमरो दीटा independent clauses थिबो जोटा join करूथुबो दीटा independent sentence को clauses को गोटे coordinate conjunction सहित. ता माने दीटा simple sentence थिबो, independent clause थिबो, दीटा simple sentence को हमरो गोटे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जते बेले जॉइन करिवो सेते बेले गोटे बड़ सेंटेंस हमें पाइबा, ताको हमें कंपाउंड सेंटेंस बोली कहिबा. फॉर एग्जांपल हमें दे देबा दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज लेंदी. तो एबे हमें कॉमन रखि देबा दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग बट लेंदी. हियर व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन.
he is tall but she is short. he is tall ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ independent clause, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା and she is short ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ତା ମାନେ ଦୁଇଟା simple sentence ଯଦି ମିଡିଲରେ ଆମର coordinate conjunction join ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା compound sentenceରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଦେବା। then after you may stay here or go home, that means you may stay here or you may go home. Now here or word is a coordinate conjunction that join the two independent sentence. So we call these examples are go with the compound sentence. Then complex sentence. Now the complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. तो आम देखा कम्प्लेक्स सेंटेंस है से सेंटेंस जो थे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज थी एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज थी। तो गोटे अधिक कौन थी डिपेंडेंट क्लॉज थी जोटा कि डिपेंड करुव आउ गोटे स्वाधीन कौन थी गोटे क्लॉज थी जोटा कि कहीपर वाक्यांश थी स्वाधीन वाक्यांश थी आउ वन और मोर देन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी से सेंटेंस को आमर कौन कहते कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। टेल मी व्हेयर यू वेयर बोर्न, एबे जदि टेल मी टाको आमे कौन करबा इरेज करदबा व्हेयर यू वेयर बोर्न केबे भी गोटे आमर इंडिपेंडेंट वाक्य हो पारिबो नहीं, क्लॉज हो पारिबो नहीं, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड एलोन। यह एका ठिया हो पारिबो नहीं विदाउट द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज रो हेल्प रे से केबे भी ठिया हो पारिबो नहीं। यह आमर डिपेंडेंट क्लॉज व्हेयर यू वेयर बोर्न आउ टेल मी दैट इज मेन क्लॉज, सेटा मेन क्लॉज हो। तो से भली भाव में आमर एसेट्रा दे देछि से भली भाव में आमर वाक्य रो डिवीजन हेछि। देन आफ्टर जो आम देखी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर देयर। तो आम देखिबा एंड बट एट स्टिल और अदरवाइज देयरफॉर ईदर और neither nor not only but also both and so far beside etc. तो ये देखा जो कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस टिके जो एग्जांपल गुड़िक टिके आमर लेंदी थिला, टिके जदिओ बुझीबार तुमको टिके असुविधा हेइथिबो ताहले आमे देखिबा नेक्स्ट रे तार उदाहरणटा केमिति एक्चुअली होउची। तो आमर मने अछि जे कंपाउंड सेंटेंस हैला दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टाको जॉइन हेकी गुटे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइन करथबो, तो ताकू ही आमे आमर कंपाउंड सेंटेंस कहबा। कम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे मेन क्लॉज थी आउ मोर देन वन सबोर्डिनेट क्लॉज थी। तो ये देखिए आमर कंपाउंड सेंटेंस फॉर एग्जांपल दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एबव। तो आम तो डिस्कस करते दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज लेंदी। तो ये आमर कॉमन रखी दे दिस क्लास। नाउ आमे कहबा दीटा सेंटेंस आमे लिखिले दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज लेंदी, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अच्छी दीटा स्वाधीन वाक्य अच्छी कही परिबा। तो ये जो सिंपल ये भी सिंपल सेंटेंस हो दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज लेंदी। तो ये आमर कौन हम दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग ये आमर फुल स्टॉपटा तो लिखा जाइथिबो इरेज हो जाइए कि जना पड़ू नहीं। तो तुम टिके क्लीयरली देखिद जो दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज दीटा तो लिखिपर ना आम कह दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग हियर इन द प्लेस ऑफ दिस क्लास। तो गोटे कॉमन रही एंड लेंदी, यह इंटरेस्टिंग अच्छी किंतु लेंदी अच्छी एंड लेंदी एवं लेंदी भी कि बट भी आम लगिपर इन द केस ऑफ एंड। तो ये देखिए सेकेंड एग्जांपल ही इज टॉल सी इज शॉर्ट। ही इज टॉल सी इज शॉर्ट। तो ये देखिए दीटा आम स्वाधीन वाक्य कहीपर दीटा सिंपल सेंटेंस कहीपर ताकू जदि आम कंपाउंड करवा देन आफ्टर वी विल राइट ही इज टॉल बट सी इज शॉर्ट, ही इज टॉल बट सी इज टॉल, नाउ सी इज शॉर्ट, नाउ बट इज द कोऑर्डिनेट कंजक्शन व्हिच जॉइन द बोथ सेंटेंस। So then after we come to third, he joined the English essay competition. He won the prize.
Now he joined the English essay competition is one independent clause or simple sentence. He won the prize simple sentence. जदि हमें compound करचे then we have to join the two sentences. Now he joined the English essay competition and won the prize. Now and is a coordinate conjunction. Then fourth example, you may stay here, you may go home. Now we have to join the two sentence in a coordinate conjunction for making a compound sentence. Now you may stay here, you may go home. तो ये भी हमरा कौन करिया कॉमन कर दबा you may stay. तो ये भूल है you may stay here or go home. You may stay here एटा home जगह रे here हबो. You may stay here or go home. Then after complex sentence is one in which we find one independent clause and more than two dependent clause. So here for example, the student who work hard succeed in the examination. The student succeed in the examination, that is independent or main clause. तो ताको कही परिबा हमें main clause, independent clause. Who work hard, that is dependent clause. Also we known or we can call subordinate clause to the dependent clause. तो ये देखिबा without the help of the independent clause, who work hard can stand alone. तो ये आमर डिपेंडेंट क्लॉज टा केबे स्टैंड हे परिबोनी एका स्टैंड हे परिबोनी विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये स्टूडेंट सक्सेड इन द एग्जामिनेशन यह पूरा पूरी गोटे भल सेंटेंस टे हे परिबो. बट हियर हु वर्क हार्ड इट वेट समथिंग यह किछि तो आमर सेंटेंस ऊपर वेट करछि. यह आमर पूरा पूरी कहबा को गले सबऑर्डिनेट क्लॉज जहाँकि आमर मेन क्लॉज को कौन कौच डिपेंड कर. तेणु मेन क्लॉज आ सबऑर्डिनेट क्लॉज रो जो मिश्रण रे जो वाक्य आमर गठित हुए ताकू आमे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहंती बोली कहा जाउची. Then after in the second example, the museum was very interesting as I expected. The museum was very interesting. It can stand alone, but without the help of as I expected. Now, as I expected, that is dependent clause or subordinate clause. It cannot stand alone, but here the museum was very interesting can stand alone. कहीं तो stand हे परिबो, but here although he was wealthy, that cannot stand alone. It waits to the main clause, it waits to the independent clause, and now it is dependent clause also in other words subordinate clause. So although he was wealthy, it cannot stand alone. Then after we come to kinds of simple sentence. Kinds of simple sentence. Now simple sentence is divided into four kinds. One is declarative sentence, also we known as statement, and another is interrogative sentence, also we known as question, imperative sentence, that is also known as command, and exclamatory sentence, that is all known as exclamation. And here we have to know more about interrogative. Now we come to the topic interrogative, that is question type sentence. So now we come to declarative first, then after interrogative, imperative and exclamatory. First we have to know about declarative sentence, which is also known as statement, as I tell before. Now a sentence that simply affirms or denies something is called declarative sentence. It is a sentence of a statement. For example, Katak is on the Mahanadi. The story appears very interesting. Miss Rosme teaches English grammar. He is going to sell his car after Holi. These are statement type sentence. तो कही परिबा Katak is on Mahanadi. Someone is giving some statement. तमे जानि कही परिबा केही जन तो statement दोची. The story appears very interesting. ये तो हमर भी कोन कहूची केही जन हम statement दोची. आउ गोटे कथा हैला तो
it starts with a capital letter and ends with a full stop. तो गोटे स्टार्ट होइतिबो कैपिटल लेटर रे आ फुल स्टॉप रे जते बेले शेष होइतिबो से सेंटेंस को हमर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहंती स्टेटमेंट भी कहंती. देन आफ्टर वी कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंस. And as I tell before that interrogative sentence भितर तो आम बहुत किसी जानिबा कारण आमर टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस जोटा कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंस किंतु टिके खाली जानी दबा ए सेंटेंस व्हिच आस्क्स क्वेश्चन आर यूजुअली कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस जो थे हम किसी क्वेश्चन पचाचे से सेंटेंस को हमर इंटरोगेटिव सेंटेंस कहंती. जेमेति कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. What are you looking for? Someone is asking a question to someone. Are you mad? Is this a pen? Like this. तो यही भली भाव में बहुत सारा एग्जाम्पल अच्छी. देन आफ्टर वी कम टू imperative sentence, also we known as command. A sentence that express a command, advice, request, warning and prohibition etc. is called imperative sentence. तो गोटे सेंटेंस सेते बेले कहीं जड़े कमांड दउथबो, एडवाइस दउथबो, रिक्वेस्ट, वार्निंग, प्रोहिबिशन यही सब भलिया वाक्य को हमर imperative sentence कहंती. जेमिति कि respect your elders, that is someone is giving a advice to someone. कहीं जने तो advice कहा को दउचंती, that is a command sentence or imperative sentence. Then after please shut the door, someone is requesting to someone. तो कहीं जने कहा को गोटे रिक्वेस्ट करची तो आमे कहि परिबा एठी please shut the door, it is a request type सेंटेंस. आई कहि परिबा एहा हमर इंपरेटिव रे जाउची. मार्च अहेड सोल्जर्स, दैट इज ए कमांड. कोई जने कमांड दउचंती गो देयर, समवन इज गिविंग ऑर्डर. के तो जने ऑर्डर दउचंती. नाउ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटा को सेंटेंस से जीवो इंपरेटिव सेंटेंस से जीवो. देन आफ्टर वी कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हेन सडन फीलिंग्स कम्स आउट, जिते बेले सडन फीलिंग्स आसीबो सेते बेले तो हमर एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन कहंती, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहंती. ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग इज कॉल्ड ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट फॉर एग्जांपल, व्हाट एन एक्सीलेंट सिंगर शी इज. व्हाट an excellent singer she is. तो एबे हमारा सडन फीलिंग्स कम्स आउट इन आवर बॉडी. तो हठात आम कौन कहे सडनली गोटे फीलिंग्स आसूची, हठात आम कहूँ आश्चर्य है कि दैट इज गो विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो. तो इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी आर गिविंग ए मार्क. इन द एक्सक्लेमेशन मार्क आम देबा इन द लास्ट और इन द मिडिल. एमती आमको देबाकू पड़िबा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे. नॉट इन द फास्ट बट इन द मिडिल भी देबाकू पड़िबो. व्हाट एन आइडिया सर्जी, व्हाट एन आइडिया सर्जी हठात कहूँ सडनली आमर फिलिंग्सटा कौन हो एक्सप्रेस होची सेते बेले आम कौन कर एक्सक्लेमेशन चिन्ह दौचे आमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहूँ. हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स ऑल्सो आम कौन कर सडनली कहूँ by giving a exclamation mark. एटा भी आमर जाउची कोथरे exclamatory sentence. What a nice girl she is, that also go with the exclamatory sentence. Then after we come to interrogative, and that interrogative is our chapter. Interrogative. And now the interrogative sentence is divided into two types. One is yes or no type question or interrogative, and another is WH word interrogative. So let's see some example of yes or no type questions or interrogative. Did she attend the class yesterday? Are you joining the picnic? Can you read my writing? Does the bus stop here? Has he seen the film? Do you like coffee? Like this. Did she attend the class yesterday? Suppose our teacher पचारे आमको क्वेश्चन डिड सी अटेंड क्लास yesterday, ताहले आमर आंसर हे परिबो ना आमर एस सी अटेंडेड द क्लास yesterday और नो सी डिड नॉट अटेंड द क्लास yesterday. लिखि परिबा ए सी अटेंडेड द क्लास yesterday और नो सी डिड नॉट अटेंड द क्लास yesterday. तो जदि हम लिखा आमर क्वेश्चन आंसरटा आसूची कौन एस और नो रु, तेणु आम कौन कहते एस नो टाइप क्वेश्चन कौचे.
आर यू जॉइनिंग द पिकनिक ता माने हमको जदि कई जने क्वेश्चन करछन्ती आर यू जॉइनिंग द पिकनिक तुम्हें पिकनिक जॉइन करछो कि तो एबे लिख दो यस आई एम जॉइनिंग द पिकनिक और नो आई एम नॉट जॉइनिंग द पिकनिक एमती हे परिबो तो यस नो रे आंसर आसी जाउची. Then after can you read my writing? Suppose I am asking question to you that can you read my writing? Yes, we can read your writing or no, we can't read your writing. এই ভଳି ভাବରେ आंसर आसीबो लाइक दिस এই ভଳି ভাବରେ হবো तो yes ଆଉ no ର आंसर आସୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ yes no टाइप इंटरगेटिव कहନ୍ତି. देन WH वर्ड इंटरगेटिव जोटा कि WH वर्ड रो स्टार्टिंग हेकी WH वर्ड आम देखा पाइबा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर तुम्हें कौन खोजुच तो ये लिखि पारिबो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब आई एम लुकिंग फॉर ए गुड हाउस लाइक दिस ये भाव में लिखि पार जोटा कि WH वर्ड स्टार्टिंग सो दैट वी कॉल्ड WH वर्ड इंटरगेटिव. Who wrote the Mahabharata? Who told you the secret? Why do you want go home? How can I contact with you? Where are you now? Which books do you prefer to read? Like this. से भली भाବରେ let's see how yes or no questions are formed. Some statements are already written there and some questions are also formed and let's see how it is formed. It was raining. It was raining. First we have to find out who is a helping verb. Now helping verb is was. It was raining. हेल्पिंग वर्ब आमर वाज अच्छी तो आमर जानिचे पूर्व येस नो क्वेश्चन जो फॉर्म करा जाए हेल्पिंग वर्ब आमर फास्ट रे लिखा जाए. देन वाज इट रेनिंग हे परिबो वाज हेल्पिंग वर्ब से भले भाव में ही हैज सीन द फिल्म एठी आमर हेल्पिंग वर्ब हैज ही सीन द फिल्म लाइक दिस. यू कैन रीड माय राइटिंग एठी आमर आसीगला कोन हेल्पिंग वर्ब कैन तो कैन यू रीड माय राइटिंग कैन हेल्पिंग वर्ब आगे आसीगला तापर कोन होला हमर क्वेश्चन हे गला आई एम राइटिंग हेल्पिंग वर्ब am I writing you are playing are you playing like this तो ये हमर am can has was are ये सब हेल्पिंग वर्ब अछि तेनु हमें प्लेस बिफोर इन द प्लेस ऑफ ऑक्सिलरी तो एबे देखिबा हमर they boarded the bus stops here you like coffee तो यही थे हमें देखिबा they boarded the bus इटी verb हैला boarded the bus stops here verb हैला stops you like coffee verb हैला like तो now we do not find any helping verb here so in the place of a helping verb we have to place it suitable do verb. हेल्पिंग वर्ब आम जाने आगे रही गोटे सेंटेंस जदि आम येस नो क्वेश्चन करुचे ये तो हेल्पिंग वर्ब ना कौन करवा ये आम देखा पड़ो कौ टेन्स लिखा जाए एंड अकॉर्डिंग टू द टेन्स वी हैव टू ऐड ए सुइटेबल डू वर्ब हियर तो ये देखा यू लाइक कॉफी ए साइड मु भावुची नेले भल हम यू लाइक कॉफी तो ये देखा द सेंटेंस इज रिटेन इन प्रेजेंट टेंस सो लाइक डू आमर प्रेजेंट वर्ब तो से लिखिदेव कौन आमर प्रेजेंट लिखा जाए डू तो ये डू यू लाइक कॉफी ये आमर कौन ना क्वेश्चन हो गला द बस स्टॉप्स ये स्टॉप्स जोटा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जदि थाए ताहले आमर कौन हम एस बा यूएस जोग हम वर्ब आम जाने तो ये आमर कौन हम जो एस लगा जाइए आम आखि बंद कर एस लगी माने डज को धरवा डूर डज है आमर कौन अच्छी स्टॉप्स अच्छी माने एस अच्छी माने डज है तो ये डज फास्ट आसिले आमर हेल्पिंग वर्ब हो गला और ऑक्सिलरी वर्ब हो गला डज द बस स्टॉप हियर एठी आउ एसटा कटा जीवो तो डज बस स्टॉप हियर लाइक दिस रिटन देन दे बोर्डेड द बस एठी हमर पास्ट टेंस रे लिखा जाई सो वी टेक डिड वर्ब डिड हमर ऑक्सिलरी को धरिबा कारण डिड हैला पास्ट टेंस डू रो पास्ट टेंस डिड तो एठी धर देले डिड
दे ब्रॉड द बस एठी जदि हमर पास्ट टेंस से लिखा है एठी हमर से प्रेजेंट टेंस से लिखा जिवो कारण एठी ऑलरेडी पास्ट टेंस से लिखा है जी आउ डबल लिखा जिवनी इन ए क्वेश्चन सो डिड दे ब्रॉड द बस लाइक दिस आर रिटन. Then note if there is no auxiliary verb, a suitable do verb can take place in the place of auxiliary. I have already told you before. तुमको तो कही देछि. Let's see how WH word questions are formed. केमिति WH word questions form होछि से सब देखिबा. फास्ट हम देखिदले yes or no questions केमिति form होछि. एबे WH word question केमिति form होछि लिखिबा. स्टेटमेंट सम स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी रिटन कही सारी क्वेश्चन भी लिखा जाए केवल तुमको डिस्कशन रे देखा हम जे केमती है. इफ इरेज रमेश वर्ड रमेश टोल्ड मी द सीक्रेट देन वी आर मेकिंग ए क्वेश्चन बाय इन द प्लेस ऑफ रमेश हु टोल्ड मी द सीक्रेट. मी जगह कौन हम हु टोल्ड यू द सीक्रेट. सपोज रमेश मते सीक्रेट कहला तो मुझे क्वेश्चन करी मु कहि तते किए सीक्रेट कहला. हु टोल्ड यू द सीक्रेट किए तुमको सीक्रेट कहला किए तते सीक्रेट कहला. सो इन द प्लेस ऑफ रमेश वी प्लेस ए WH वर्ड दैट इज हु. तो ये भली भाव में रमेश टोल्ड मी द सीक्रेट ये जब सीक्रेट को आम इरेज करुचे ताहले आम लिखिपर डिड रमेश टेल यू तते रमेश कौन कहला कौन कही मत सीक्रेट कही. तो ये कहवा टोल्ड अच्छी कही. तो ये जो टोल्डटा आमर कौन हम डीटा फास्ट पलि आसो फास्ट आमर आसो कौन WH वर्ड देन आफ्टर आसो ऑक्सिलरी देन आफ्टर सब्जेक्ट देन आफ्टर वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ये भाव में आमर फॉर्म हम. तो ये जेहेतु आमर WH वर्ड अच्छी देन आफ्टर आम जो टोल्ड अच्छी ताहे डू वर्ब कौन हम ना डिड हम. एटी आमर रमेश सब्जेक्ट आसला ये टोल्ड रु टेल हो गला कारण आमर वर्ब मेन वर्ब टोल्ड अच्छी ये डिड हो सारे ताहले ये कौन हम टेल हम प्रेजेंट लिखागला. आउ ये कौन मी मते कहला ये तते तू. तो ये कौन यू तू तुमको जोटा कि कहुच्छी यू आसीगला. तो आर यू क्लियर. देन स्टेटमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर फोन हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू. तो ये आम कौन लिखा ओवर फोन जदि इरेज कर दे ताहले क्वेश्चन आसी तुम्हें मते फोन जरिया कंटाक्ट कर. हाउ कैन आई कंटाक्ट यू मु किपरि आपन को कंटाक्ट करि परिमे. एठी हमर WH वर्ड बसिबो एठी जदि हो W नाही H वर्ड अछि तथापि हाउ हमर जाउची WH वर्ड रे. हाउ कैन आई कंटाक्ट यू ये मी अच्छी ये हूँ आई मु किपरि तुमको कंटाक्ट करी. ये कहगला तुम्हें मत कंटाक्ट कर फोन जरिया मु तुमको किपरि कंटाक्ट करी. ये क्वेश्चन आसी जाऊँ. आई वांट टू गो होम आज मदर इज इल. व्हाई डू यू वांट टू गो होम कहीं आपण घर को जीवाक चाहते मु घर को जीवी. ये आई मु घर को जीवी जब क्वेश्चन पचार तुम्हें कहीं जीव से पचार. तो व्हाई डू यू वांट टू गो होम व्हाई बसले आम WH वर्ड ये जेहेतु वांट अच्छी पास्ट लेखा नहीं प्रेजेंट लेखा है डू वर्ब आसला डू वर्ब प्रेजेंट लेला डू देन आई जगार आमर आसो ये सब्जेक्ट आसला कौन ना आईटा हो गला यू तुम्हें एंड वांट टू गो होम जोटा रिमेन आसला ये आमर आज द मदर इज इल यहीटा को जब इरेज कले कहीं आपण घर को जी मु घर को जी कारण माँ असुस्थ अच्छा यही भाव में लिखा जाए. देन सम नोट्स आर देयर. We use a WH word including how, his, whose cycle, etc. to ask for a specific information about who, what, how, why, when, where, how much, how many, etc. The basic order of words in WH question WH word plus verb plus object ये फॉर्मेट रहा केमिति हमर WH word क्वेश्चन बना जाए. WH word फास्ट बना जीवो देन आफ्टर वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. First, for example, who told you? Who WH word told verb you object. Sometimes we use another pattern like the following. Here
WH word auxiliary verb subject verb others as in. तो ये लिखिदेबा फॉर एग्जांपल व्हाट डिड ही टेल यू इन द पार्टी यस्टरडे. What did he tell you in the party yesterday? What is a WH word? Did auxiliary verb, he subject, tell verb, you in the party other as in. तो कही परिबा others as in ये सब others लिखा जाइछि. I hope you like my video and thank you all for watching.